अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, ji, Assalamu alaikum students. Can you hear me? Can you hear me, students? Please raise your hand if you can hear me. Yes मैम। Okay, good. Okay, ji, let's start then. Okay, ji. My name is Dr. Aisha Khan. Those who are not familiar with me, I've been here in UMT teaching since 2012, and the course that you are enrolled in is data mining, right? For some students, this course is an elective course. That is, for CS students, it's an elective course. And for data science students, it's a core course. So please, those students who are in the data science department, please raise your hand. Okay. Hanji. So 3 students, till now I can see 3 students who are from data science department. So I think the attendance is really low. So maybe there are few other students who are, because as far as my knowledge, over 40 students are, I think it's like, yes, I think 50 students are enrolled in this course. Shahid Suhail, I've asked that students who are from data science departments, please raise your hand. Are you from data science department? Achha ji. Data mining is a core course for data science students, and it's an elective course for computer science students, right? The data science students will also have a lab with this course, okay, in which you will get familiar with Python. Yes, I've asked about data science students, but again, I just wanted to have an idea of how many of data science students are in my class, because there are only 19 students right now.
So that means I can't have a clear picture. So it's, I think it's going to be 80-20 ratio. 80% of the students would be from CS and 20% would be from data science. It's a elective course for computer science students, and it's a core course for data science students. Data science students also have lab with it. So let me see कि आपकी lab का किस वक्त है. आपकी those students who are from data science department, आप देख सकते हैं कि lab कब है आपकी. वैसे तो मैं भी लाइव उसमें देख रही हूँ कोर्स में, बट ठीक है जी. 11 to 1:30 ऑन थर्सडे विच इज टुडे. ठीक है, आज हुई है आपकी लैब. हाँ जी कामरान, आज लैब हुई है आप लोगों की. ओके हाँ जी, चलें नेक्स्ट से हो जाएगी. शफाकत अली इज योर रिसोर्स पर्सन फॉर द लैब. अच्छा ठीक है, मैं जरा जी लैब इंजीनियर से बात कर लूँगी. दो स्टूडेंट्स, दोज आर फ्रॉम CS स्टूडेंट्स, मैं उनसे परमिशन ले लूँगी इफ़ ही अलाउज के द स्टूडेंट्स ऑफ CS, दोज हु आर इंटरेस्टेड, can also sit in the data mining lab and can get benefit from it. ठीक है, चलें ये बातें बाद में डिस्कस कर सकते हैं. Then let's start the lecture. Those who don't know me, my name is Dr. Aisha Khan, and my email address is aisha.khan@umt.edu.pk. You can email me anytime. I'm very active on email, so I reply really quickly. Again, of course, you can meet me in office. My office is 504. Okay जी, sorry for the interruption. I had a student in my class office. अच्छा जी, office is 504. You can see me in my office timings, counseling hours. The counseling hours will be displayed on the office door, and you know the whole drill because data mining अब जो ले रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोग 6th semester onward के तो students होंगे, especially the CS students, right? अच्छा जी, the textbook that we are going to follow is Data Mining Concepts and Technique by Han and Camber. ये किताब आपने जो है वो फौरन से ले लेनी है इलेक्टिव कोर्स के लिए. बाकी इलेक्टिव कोर्सेज की तरह ये मत समझिएगा कि हम किताब नहीं पढ़ेंगे या किताब से हम फ़ायदा नहीं हो सकता. So you need to have the book and you need to learn the concepts from the book. So make sure that you get it. ले लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, of course. And reference book is Introduction to Data Mining with Case Studies by J.K. Gupta. अगेन ये आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं, और अगर मैंने इसमें से कुछ आपको रीडिंग मटेरियल दिया तो वो मैं क्या करूँगी कि आपको अपलोड कर दिया करूँगी उस पर. अच्छा जी, LMS मेरा भी पूरा प्रॉपरली चीज़ें अपलोडेड नहीं है, कोर्स आउटलाइन एंड एवरीथिंग, द होल आइडिया ऑफ द कोर्स, but it will get updated within this weekend. Let's let things settle down. ठीक है. ऑफिस डोर के बाहर मेरे जो काउंसलिंग आवर्स हैं वो भी नेक्स्ट वीक के स्टार्ट से लग जाएंगे. जर चीज़ें सेटल हो रही हैं ड्यू टू ऐड एंड ड्रॉप. ठीक है. अच्छा जी, इसके अलावा मैं अनाउंसमेंट्स जो LMS पर करूँगी, मेक श्योर दैट you know check your LMS at least once a day or twice a day.
जितनी दफ़ा आप अपना इंस्टा या व्हाट्सएप या फिर फेसबुक खोलते हैं उतनी दफ़ा कोशिश करें कि आप अपना LMS भी खोल लें, ताकि कोई अनाउंसमेंट्स हैं या कोई चीज़ अपलोड हुई है नहीं तो वो आपको नज़र आ जाए। इसके अलावा जो जूम के लेक्चर्स के लिंक्स हैं वो मैंने सारे क्रिएट करके LMS के ऊपर रख दिए हैं। आई होप कि आपने, अभी तो मैंने आपको मैसेज भी किया था वो लिंक, लेकिन अब आगे से मैं मैसेज नहीं करूँगी। LMS के ऊपर ये सारे लिंक्स क्रिएट हुए हुए हैं और मौजूद है, ठीक है। तो आपने वहाँ से लिंक उठाना है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट लिंक होगा या उस डेट का लिंक होगा आपने वहाँ से उठाना है, और ऑफ कोर्स उससे जूम का लेक्चर जो है वो अपलोड कर देना है। अच्छा जी, ये ऑनलाइन कोर्स है फिलहाल तो। लेट्स सी जी, मोहम्मद अब्दुल्ला एंड मरिया काजी, डू यू वांट टू से समथिंग? मोहम्मद अब्दुल्ला, डू यू वांट टू से समथिंग बेटे? नो मैम। अच्छा, ऑनलाइन मैंने लिंक्स, ये क्योंकि अभी तक तो ऑनलाइन कोर्स है, सो हम इसको ऑनलाइन ही कंडक्ट करेंगे, लेकिन आपकी जो असेसमेंट्स होंगी वे मैं ऑनलाइन नहीं लूँगी। आपके जो क्विजेस होंगे, आपका मिड टर्म होगा और फाइनल होगा, वो सब कुछ ऑन कैंपस होगा। जो आपके क्विजेस हैं उसके लिए मैं ये करूँगी कि आपको मिड से पहले एक दफ़ा बुलाऊँगी, और जितने आपके ड्यू क्विजेज और टॉपिक्स होंगे, जिनके क्विजेज रहते होंगे, वो मैं आपसे एक ही दिन में एक क्लास में किसी हम एडजस्ट कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे एक क्लास, एक दो क्लासेस, और उसमें हम आपसे ये ऑनलाइन क्विज ले लेंगे किसी टाइम पे, ठीक है। और असेसमेंट्स आपकी सारी जो होंगी ना वो ऑन कैंपस होंगी, सिर्फ लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, इसी तरह लेक्चर अटेंड करें जैसे आपने असेसमेंट जो है वो ऑन कैंपस ही देनी है। सो देयर इज नो ambiguity in that. अच्छा जी, let's quickly go through before telling. मैम जो फिर आप हमारे हमसे असेसमेंट्स लेगी वो तो एक दिन में देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक जी जैसे जी आप बताओ, क्विज़ बोल रही हैं एक ही दिन में बताओ अरेंज कर लूंगी। बताओ, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करो। मैम जैसे आप बोल रही हैं कि आपके जो असेसमेंट से क्विज़ेस हो गए वो एक ही दिन में अरेंज कर लूंगी सारे, तो वो एक नहीं ही दिन में सारे फिर नहीं, बहुत ज्यादा। वो तो जी सारे नहीं करूंगी। जैसे 2 क्विजेज में, देखो 4 to 5 क्विजेज मैं मिनिमम लेती हूँ, ठीक है। 4 to 5 जी क्विजेज ठीक आप, है। मैं 2 क्विजेज जो है वो आपके मिला के ले लिया करूंगी, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको 2 क्विजेज के लिए चलिए अलग 2 दफा बुलाऊं। मैं आपको बता दूंगी ये यहाँ से सिलेबस, यहाँ तक क्विज 1 का सिलेबस है, इसको तैयार करके रखें, ताकि क्विज 2 के सिलेबस के साथ फिर मैं आपका इसका क्विज लूंगी, ठीक है। तो 2 क्विजेस मिला के हम एक क्विज ले लिया करेंगे, एक दिन मैं आपको बुला लिया करूंगी, which is going to be like hardly what 2 to 3 times, 2 तो से 3 दफा आपको बुला लूंगी पूरे सेमेस्टर में, अगर ये थ्रू आउट ही ऑनलाइन रहा तो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूंगी पहले से कि ये कोर्स है क्विज 1 का, तो इस वजह से बी प्रिपेयर्ड। तो आप जी साथ ठीक साथ अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर मसला नहीं होगा, ठीक है। ठीक। अच्छा चलें जी, एक टेंटेटिव और ब्रेकडाउन। वो ये कि हाँ, अब हमारी तो लैब नहीं है जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली भी करवाएंगे ना, यानी कि ऐसा ना हो ना कि जो पार्ट वो लैब में एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम वो मिस कर दें। क्लास में भी कराऊं? अच्छा, एक तो ये कि पाइथन से कितने लोग फेमिलियर हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद पाइथन? गुड, हाँ जी, और कुछ लोग नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही थी बाकी लोगों को, और कि मैं आपके जो ये लैब इंजीनियर हैं उनसे परमिशन ले लूं कि आप उनकी लैब में विदाउट क्रेडिट, ठीक है, विदाउट क्रेडिट आप उनकी लैब में बैठ जाएं और आप उनसे जो वो सिखा रहे हैं वो सीख लें, ठीक है। मैं बेसिक्स नहीं सिखाऊंगी पाइथन की, को क्लास में कोशिश करूंगी ज़रूर कि हम कोई एक आध दिन बीच में ऐसा निकालें जिसमें हम कोलैब पे आपको मैं लाइब्रेरीज बताऊं, जिन जो डेटा प्री प्रोसेसिंग की लाइब्रेरीज हैं, या आपकी डिफरेंट बाकी एल्गोरिदम्स के लिए जो लाइब्रेरीज इस्तेमाल होती हैं उन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल आपको बताऊं। कंप्लीटली प्रैक्टिकल नहीं कर सकते बिकॉज हमने एल्गोरिदम्स को समझना भी है और वो करना है, वो बेसिकली क्लास में करने वाला काम है। तो मैं आपसे 2 चीज़ें करूंगी, एक कोशिश करूंगी कि कुछ क्लासेस में हम
लाइव बैठ के कोलैब में थोड़ी सी कोडिंग करके और कुछ लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर कर लें। बाकी एक्सप्लोर करना आपका काम होगा। उसके अलावा जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी, दे आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेशन असाइनमेंट्स होंगी वो सारी, जिसमें आपको पाइथन अच्छा ऐसा करो ओवर द वीकेंड, क्योंकि सारे स्टूडेंट सी प्लस प्लस से के बैकग्राउंड के हो, over the weekend what you do is get some tutorial of Python basics and you know get your hands on it. C++ से कहीं ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक बिल्कुल उसकी समझ लो। बाकी यह है कि कोलैब में मैं आपको आप मेरे साथ साथ कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनके जिनके जो उनके जो फंक्शंस हैं वो हम इम्प्लीमेंट करके देखते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी, 4 असाइनमेंट्स दूंगी आपकी, वो सारी की सारी दे आर गोइंग टू बी पाइथन बेस्ड और आपको उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए डेफिनेटली आपको खुद से कुछ थोड़ी सी रिसर्च करके थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन जो है आप उन लाइब्रेरीज की पाइथन में उसको पढ़ के आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उन लैब्स की जो डेमो होगी वो आपको टीए को या मुझे डेमो देंगे आप, और उसी तरह जिस तरह प्रोग्रामिंग कोर्सेज की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपकी वो होती हैं असाइनमेंट्स होती हैं और उनके डेमोज होते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह होगा। और इसकी एंड में हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे जो कि आपकी मर्जी का होगा, ठीक है। I would want you to choose a project and implement it, and then of course you're going to get the marks for them. जी बेटे समझ आ गई? हाँ जी शाहिद सुहेल। Yes ma'am, thank you. चलें। हाँ जी कामरान। जी मोहम्मद कामरान, do you have to say something? You've raised your hand. Okay. अच्छा जी, थोड़ी सी ग्रेडिंग पॉलिसी यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये टेंटेटिव ग्रेडिंग पॉलिसी है। प्रोजेक्ट कुड बी मोर देन, अच्छा एक तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटीज ऐड नहीं की हुई, यहाँ पे एक्टिविटीज को मैं एक वेटेज दूंगी। एक्टिविटी क्या चीज होगी? जी मैं अनम्यूट ही हूँ बेटे, आपको मैं अनम्यूट करूँ? सॉरी। अच्छा आपके पास ये मेरे ख्याल से ये एक सेकंड, you have this option to unmute yourself. You can unmute yourself बेटे। हाँ जी, आप बाकी सबके पास अनम्यूट करने की ऑप्शन है आप लोगों के पास? यस मैम। जी है। जी बेटे सबके पास है, ये आपके कोई जूम में इशू है, मैं आपको अनम्यूट भी नहीं कर सक रही। There's some issue in your account. You can write it in the chat. Whatever you want to ask, you can write in the chat. चले मैंने अब कर दिया है। कामरान अब चेक करें। Now can you unmute yourself? मोहम्मद कामरान अब देखें बेटे। मैंने इसको ऑफ करके दोबारा ऑन किया। यहाँ I can easily see that I've allowed the participants to unmute themselves. There is issue on your side. आप चैट पे लिख के मुझे बता सकते हैं what question do you have. अच्छा जी, यहाँ मैंने एक्टिविटीज का मेंशन नहीं किया हुआ। We'll be having these activities on the regular basis. So whenever you come to this class, make sure that you have your notebook and your pens with you. I'll ask you to, solve any of these problem with me, and I can also ask you. Okay. And I can also ask you to, submit it to me right then. मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी जिसमें आपको मुझे सबमिट करना पड़ेगा। सो प्लीज
make sure that you have your pens and your notebooks ready. Challenge, ठीक है? So this is the tentative evaluation breakdown. It could vary. आपकी अगर मुझे प्रोजेक्ट में मैंने जरा बड़ा आपको टाइम ज़्यादा टाइम दे दिया तो मैं आपको प्रोजेक्ट के 15 मार्क्स कर सकती हूँ, फाइनल में से कम कर सकती हूँ, एक्टिविटीज़ इसमें शामिल नहीं हुई मैं वो डाल सकती हूँ एंड सो ऑन. ओके जी, मुझे ये बताएं कि आप इस कोर्स में क्या सोच कर आए हुए हैं? व्हाट डू यू थिंक डेटा माइनिंग इज? Ma'am, how are we going to send it? क्या चीज बेटे? एक्टिविटीज? No, ma'am, अभी आपने कहा था ना टाइम दे रही हैं, we have to submit something before that time. No. I'm just telling you कि मैं theoretical तो आपसे हम theoretically तो समझेंगे चीज़ों को, उसके बाद मैं आपको किसी वक्त भी एक्टिविटी करने का कह सकती हूँ, ठीक है? और वो जो एक्टिविटी होगी मैं कभी आपसे सबमिट करवाऊंगी और कभी आपसे कहूंगी कि सबमिट ना करें और कभी आपसे सबमिट करवाऊंगी. सो यू हैव टू बी विजिलेंट एंड यू डू ऑल दी एक्टिविटीज. और फिर जब मैं आपको सबमिट करने का कहूंगी तो मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी जिसमें आपको सबमिट करना होगा. ये मैं आपको आपके फ्यूचर प्लान्स बता रही हूँ इस कोर्स में. अभी आपने कुछ सबमिट नहीं करना. अभी मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि what do you have in mind when you have taken this course data mining? क्या है दिमाग में? I'm extracting data and predicting patterns of data from our data store or data warehouse, something like that. Okay, extracting data. Data extract karna. What do you mean by extracting data? Ma'am, it is like discovering patterns and Yes, data is already there. ठीक है, डेटा कलेक्शन हुई है, हमने ये ज़ूम करना है, डेटा हमारे पास मौजूद है, उस डेटा के साथ क्या करना है, दैट इज व्हाट डेटा माइनिंग इज ऑल अबाउट. हाँ जी, एनीबडी एल्स? व्हाट एल्स डू यू हैव माइंड? एनीबडी एल्स? व्हाट डू यू हैव माइंड? व्हाट डू यू हैव इन माइंड व्हेन यू एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स? नाम अट्रैक्टिव था, बहुत सुना हुआ था इसके बारे में, क्या था? कोई चीज तो होगी जो दिमाग में होगी, या इसमें कुछ FIP करने का इरादा था, या what do you have in mind? I want to know. या टाइम सूट कर रहा था? कोई मोटिवेशन तो होगी ना. टाइम सूट करना भी एक मोटिवेशन है. अच्छा, again as the name indicates, it has something to do with the data, right? Gold mining कहते हैं ना हम, ठीक है ना? As we say gold mining का मतलब ये होता है कि जो आपके पास रॉ रॉक्स हैं या माइंस हैं जिनके अंदर हर किस्म का पत्थर मौजूद है, उस पत्थर में से वैल्यूएबल पत्थर निकालना जिसे हम गोल्ड कहते हैं. It's exactly like that we have huge number of data present nowadays, and out of that data human eye is unable to find out the patterns, the knowledge out of that data. So we have some mining algorithms जो हम उस डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं और हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल नॉलेज मिलती है. Okay जी, Abdullah Mansab, you're saying ma'am data cleansing, organizing it, get information for it. Yes, these are all parts of it. Apart from that, we have a lot of other things, but these are also, yes, you're right, these are few modules of data mining. So let's just go through why data mining is important and what is data mining in this lecture. इस lecture में हम कोई नया algorithm नहीं सीखेंगे, अगले लेक्चर से शुरू करेंगे. लेकिन यहाँ हम सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है. अच्छा जी,
आजकल डेटा रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो गया। डेटा कलेक्शन जो है वो इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। ये आसान होने की वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट द अमाउंट ऑफ डेटा इज बिकमिंग ह्यूज एंड ह्यूज। क्यों ये डेटा कलेक्शन आसान हो गई है? डेटा कलेक्शन आसान हो गई है ऑटोमेशन की वजह से। एवरीथिंग इज नाउ ऑटोमेटेड, वेदर इट बी एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ केयर, इफ whether it be related to some sales point, the data of your stores, the data in the transactions on your bank, name it, name anything, everywhere there is data being collected, ठीक है। मोहम्मद कामरान, अपना हैंड जो है ना वो प्लीज लोअर योर हैंड, डिस्ट्रैक्टिंग मी, मुझे लगता है कि किसी ने कोई सवाल करना है। Let's take an example, Walmart for example, with 4,000 stores all around the all around the world. जी Ali Afzal, do you have a question? मैं वो उसका ना फोन का कोई मसला इशू हुआ है तो दैट्स व्हाई वो ना Okay, that's fine. Okay, that's fine. अच्छा जी, Walmart के जो stores हैं, ये एक एग्जाम्पल है, हैज टू डील विद 460 टेराबाइट प्लस डेटाबेस। इनके पास इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि ये वो सारा डेटा, डेफिनेटली इनको ये सारा डेटा डंप करने के लिए कोई रिपॉजिटरी भी चाहिए होती होगी। अब ये डेटा अगर फजूल में सिर्फ ले लेके रखते जाएंगे तो इनका उसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर ये उसमें से वैल्यूएबल नॉलेज, कोई पैटर्न एनालिसिस या कोई प्रिडिक्शन कर सकेंगे तो फिर ये डेटा उनके काम का होगा। अदरवाइज ये डेटा सिर्फ वो एक फजूल का बर्डन उठा रहे होंगे फॉर स्टोरिंग दिस डेटा, द यूजलेस डेटा, ठीक है जी। आप कोई भी चीज ले ले, डेटा जो है ना वो हर फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है। इन रियलिटी ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज डेटाज विल एवर बी यूज्ड। अगर आप उनको यूज नहीं करेंगे तो वो जो डेटा वो जमा करते जा रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। सो बेसिकली इस सिनेरियो को कहते हैं वी आर ड्राउनिंग इन डेटा बट वी आर स्टार्विंग फॉर इंफॉर्मेशन। वी हैव bulk of data but information is zero until and unless you put use to it. So let's talk about data explosion problem. That means that automated data collection. क्यों डेटा इतना ज्यादा कलेक्ट हो रहा है? क्योंकि डेटा की जो कलेक्शन है ना वो अब ऑटोमेट हो गई है। अब कॉपी रजिस्टर लेके कोई स्टोर वाला आपका डेटा कलेक्ट नहीं करता। जैसे किसी आप स्टोर पे जाते हैं, वहाँ ये चीजें ऑटोमेट हो गई हैं, जिसकी वजह से डेटा बहुत आसानी से कैलकुलेट, मैनुअली क्योंकि डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा, इसकी वजह से डेटा कलेक्शन जो है वो आसान हो गई है। डेटा बढ़ क्यों रहा है? एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास डेटाबेस की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बहुत बेहतर हो गई हैं। 1960 से डेटाबेस की जो टेक्नोलॉजी है, डेटा को स्टोर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रही है। So these things lead to tremendous amount of data stored in databases, data warehousing and other information repository. एक कि कलेक्शन जो है वो ऑटोमेट हो गई है, दूसरा कि आपके पास डेटाबेस की टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है, एंड थर्डली बिकॉज ओवरऑल हार्डवेयर आपका बहुत इम्प्रूव हो गया है। तो आप डेटा कलेक्ट जो है ना वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब आसानी कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा सारा कलेक्ट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई वी आर ड्राउनिंग इन डेटा बट वी आर स्टार्विंग फॉर knowledge. इसका solution क्या है? इसका solution है the data warehousing and the data mining. We'll be focusing on data mining only. That means extraction of interesting knowledge, rules, regularities, patterns, constraints from data in large databases. And it's a very new field. Data mining especially is a very new field. It emerged in 1990s only. So जो बाकी इससे रिलेटेड और बहुत सी फील्ड्स हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग का आपने नाम सुना होगा। हो सकता है आप में से किसी ने ये मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग का कोर्स एक साथ उठाया हुआ। हाँ जी, किन लोगों ने मशीन लर्निंग का कोर्स भी उठाया हुआ है साथ? इज देयर एनीबॉडी जिसने मशीन लर्निंग का कोर्स उठाया हुआ है साथ? चलें, ये तो अच्छी बात है अगर किसी ने नहीं उठाया हुआ, बिकॉज बहुत सी ओवरलैपिंग चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है मशीन लर्निंग में। डिफरेंट हैं कुछ चीजें, कुछ हैं जो ओवरलैप भी करती हैं। सो बेहतर होगा कि आप इनको डिफरेंट सेमेस्टर्स में उठाएं।
It's closely related to machine learning and statistics. Statistics इसमें बहुत इस्तेमाल होता है और machine learning और इसकी बहुत सी चीजें overlap करती हैं, ठीक है? अच्छा, why data mining? Why is data mining so important? So in 22nd May 2000, Time magazine said, and it was back in 2000, right? अब तो हम इस नंबर के करीब पहुंचने लगे हैं. We're almost reaching 2025. 10 hottest jobs of the year of 2025 are going to be for data mining. 10 emerging areas of technology के अंदर ये आता है. MIT magazine said that in January 2001. So it's a very, very growing field, right? अच्छा जी. What is data mining? अच्छा, ये थोड़ी सी शायद confuse करे आपको ये statements, लेकिन you know it's pretty very interesting. There are things that we know that we know. There are things that we know that we know. बहुत सी ऐसी analysis है जो हमें पता है कि ये हमें पता है, ठीक है ना? लेकिन और ये कुछ ऐसी बातें, the second point, there are things that we know that we don't know. That means there are many things जिनके बारे में हमें पता है कि हमें पता ही नहीं. कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता है कि हमें पता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता है कि हमें नहीं पता. डेटा माइनिंग कहाँ आता है? जिन जगहों पर आपको पता है कि आपको नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डेटाबेस है और मैं उसमें से क्वेरी लगा के आराम से ये पता कर सकती हूँ कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉल 2021 में डेटा माइनिंग लिया. तो मैं क्वेरी लगाऊंगी और मैं वो चीज़ इंफॉर्मेशन अपने पास निकालूंगी. मुझे पहले नहीं पता था कि 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनरोल किया हुआ है, लेकिन मैंने जब क्वेरी लगाई डेटाबेस की तो मुझे पता चल गया कि देयर आर लाइक 50 स्टूडेंट्स, right? But there are some patterns, there is some hidden information about which we don't know that even we don't know about it. We don't even know कि इसमें ये hidden pattern मौजूद है. वहां हमें हेल्प करती है डेटा माइनिंग. कि आप डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स लगाते हैं जब, तो आपको ऐसे पैटर्न्स पता चलते हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन हिडन पता चलती है जो आपके लिए एक बहुत ही न्यू हो, आपने एक्सपेक्ट ना की हो, लेकिन वो अफेक्ट कर रही हो, ठीक है? Extraction of, this is just a bookish definition of data mining. Extraction of non-trivial, implicit, previously unknown. ये मैं आपसे बात कर रही थी, that we don't know about it. It was previously unknown that we know about it or we don't know about it, and potentially useful for information or patterns from the data. ठीक है? इसका नाम थोड़ा सा वेग है, डेटा माइनिंग. जब हम गोल्ड माइनिंग कहते हैं तो हम, इसका मतलब होता है हम गोल्ड ढूंढ रहे हैं. यहाँ जो नाम है डेटा माइनिंग, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम डेटा माइन कर रहे हैं या डेटा ढूंढ रहे हैं. हम डेटा नहीं ढूंढ रहे, हम उसमें से इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं. तो there are few people who debate that the name for this field should have been information mining या knowledge mining. So ये और नाम है उसके, जो हम ये नाम भी उनको दे सकते हैं. So there is another name for it which is frequently used. It's known as knowledge discovery or knowledge mining in databases, KDD. And some of people also call it business intelligence. ये आपने नाम सुना होगा. So ये, लेकिन ये तब काम करता है जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा माइनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? इट कैन बी अप्लाइड ऑन स्मॉल साइज डेटा. छोटे साइज के डेटा सेट्स पर भी ये अप्लाई किया जा सकते हैं इसके एल्गोरिदम्स, लेकिन रिजल्ट्स के लिए बारे में हम यू कैन नॉट बी वेरी ऑथेंटिक, ठीक है? बहुत ऑथेंटिक करने के लिए हमें बड़े डेटा सेट्स की जरूरत होती है. अगर बड़े डेटा सेट्स होंगे तो आपकी जो
Okay, ji, sorry, I think it got disconnected. Okay, ji. Data mining is basically, tell me something that I don't know. You give your data to different data mining algorithms and you find really, really interesting things that you didn't expect. When you don't know what you should be knowing, how do you write an SQL query? SQL query तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं ना जिस चीज में बारे में हमें पता होगा कि if this is the situation and this is the database में से आप दो किसी फीचर्स या एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज आप बताएंगे कि अगर ये है तो मुझे बता दो कि कितने लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं. लेकिन जब ये चीज आप SQL क्वेरी किसी चीज के बारे में नहीं बना सकते, देयर where data mining comes to the rescue. ठीक है जी. This is the process of data mining that we'll be covering. ठीक है. सबसे पहले तो हमारा पास जो डेटा होता है वो बिल्कुल ही एक रॉ फॉर्म में होता है. It's totally in the raw form. जब ये डेटा रॉ फॉर्म में होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं. What does cleaning means? ये हम सब चीजें डिटेल में देखेंगे. ये these are huge topics, right? सबसे पहले हम डेटा क्लीनिंग करेंगे. डेटा क्लीनिंग बेसिकली मीन्स, जैसे कि एक एग्जांपल मैं इसको छोटी सी आपको देती हूँ. दैट फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोर में जाके आपके एक स्टोर का डेटा है जिसमें आपके पास हर ट्रांजैक्शन का एक डेटा है जिसमें आपको पता है कि ये कस्टमर का नाम है, ये कस्टमर की एड्रेस इंफॉर्मेशन है या इसका ये टेलीफोन इंफॉर्मेशन है और उसने ये चीज़ें खरीदी एक ट्रांजैक्शन में. बहुत सारा ऐसा डेटा अगर आपके पास है तो उसमें से कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो मिसिंग होंगी. जैसे कि किसी कस्टमर का लेट्स से एरिया जहाँ वो रहता है, एड्रेस कितना, हाँ एड्रेस एरिया जो है वो मिसिंग है. ठीक है. कुछ ऐसे कस्टमर्स का डेटा मौजूद है जिनमें एरिया मिसिंग है. कुछ ऐसे कस्टमर्स का डेटा मौजूद है जिनमें उनकी पूरी ट्रांजैक्शन नहीं हुई भी. वो बहुत सी वजह से हो सकता है. वो क्योंकि अगर आप मैनुअली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो जिसने मैनुअली डेटा कलेक्ट किया है उसने गलती कर दी है. अगर ऑटोमेटेड फॉर्म में भी डेटा कलेक्ट हो रहा है तो हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया है जिसकी वजह से वो चीज़ें आपकी मिसिंग हो गई हैं. तो ये एक एग्जांपल है ऑफ डर्टी डेटा. तो इस डेटा को क्लीन करना सबसे पहला प्रोसेस है. उसके बाद व्हाट यू डू इज यू इंटीग्रेट द डेटा. डेटा इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप डेटा जब बहुत डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं और उनको कंबाइन करते हैं तो उनमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं. तो आप जब उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यू नीड टू डू देम प्रॉपरली. ऐसा भी हो सकता है कि आप दो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिडंडेंट है, मतलब कि एक ही कस्टमर का डेटा जो है वो एक सोर्स से मैंने लिया वहां भी मौजूद था और दूसरी सोर्स से लिया वहां भी मौजूद था. तो ये दोनों तो रिडंडेंट है. तो हमने व्हाई कीप इट ट्वाइस, जस्ट वी शुड कीप इट जस्ट वंस. सो दैट इज व्हाट डेटा इंटीग्रेशन डज. Okay, then we give it to this, we clean the data, we integrate the data and then we give it to the warehousing. After the warehousing, ये वो जगह है जहां आपने इसको स्टोर कर लिया. अब स्टोर करके उसके बाद हमने कहाँ देना है इसको, डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स को प्रोवाइड करना है. डेटा माइनिंग एल्गोरिदम को प्रोवाइड करने से पहले हमने इस सारे डेटा में से वो डेटा सिलेक्ट करना है जो हमारे कंसर्न का है. या अगर हमारे दिमाग में कुछ चीज़ है कि हमने ये चीज़ प्रिडिक्ट करनी है या ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट ऑफ द डेटा सिलेक्ट करेंगे और उसको डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स को आगे देंगे. ठीक है. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है इसमें इन्वॉल्व. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मींस यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू फॉर्म्स अप्रोप्रिएट फॉर माइनिंग, जो माइनिंग के लिए अप्रोप्रिएट है, जिसमें एक डेटा रिडक्शन की फॉर्म आ जाती है. ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि डेटा को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक डेटा माइनिंग एल्गोरिदम है जो कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं लेता. ठीक है. वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है. तो मुझे उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना. मेरा एल्गोरिदम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता तो मुझे उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कंटिन्यूस से डिस्क्रीट फॉर्म में. ये हम सारी चीजें, ये एक एक टॉपिक्स हैं.
ठीक है, हम सारे एज अ टॉपिक इन सब, ये जितनी मैं नाम ले रही हूँ इस वक्त, डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा सिलेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये अभी तक हमारा डेटा जो है ना वो डेटा माइनिंग एल्गोरिदम तक नहीं पहुंचा, इसलिए इसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। ये सारा काम करने के बाद देन वी आर गोइंग टू सेंड इट टू डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स, जो कि एक इंटेलिजेंट मेथड्स हैं टू एक्सट्रैक्ट डेटा पैटर्न्स। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास पैटर्न्स आ जाए, उन पैटर्न्स को एवेल्युएट करना, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। ठीक है, इंटरेस्टिंगनेस के कुछ मेजर्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम यूज करके ये पता कर सकते हैं कि क्या ये पैटर्न इंटरेस्टिंग भी है या नहीं है। ठीक है जी, तो ये जितने पहले हमने बातें पढ़ी है ना, डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दीज आर कंप्लीट टॉपिक्स एंड दे हैव एल्गोरिदम्स फॉर इट एंड वी हैव स्टैटिस्टिकल मेजर्स फॉर दीज। और ये इन सारों को हम कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये जो डेटा माइनिंग है, यहाँ से हमारा माइनिंग जो है वो एल्गोरिदम स्टार्ट होते हैं, और फिर उसके बाद वी गेट द पैटर्न एवेल्युएशन। हम देखते हैं कि ये जो पैटर्न हमें मिला है इसका कॉन्फिडेंस कितना है। एक मेजर कॉन्फिडेंस का भी होता है, जैसे ये कितना कॉन्फिडेंस है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, स्टेप्स ऑफ, इसको हम क्या कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट स्टेप्स ऑफ, वी आर कॉलिंग इट स्टेप्स ऑफ KDD। मैंने KDD आपको बताया, नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस। ठीक है, तो ये सारे काम हमने करने हैं। ये जो मैंने आपको सारी डिटेल अभी बताई है, ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है इन पॉइंट्स। डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, इट कैन टेक अप टू, अगर आप अपना डेटा को अच्छी तरह प्री प्रोसेस नहीं करेंगे ना, क्लीन नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी डेटा माइनिंग एल्गोरिदम की जो एक्यूरेसी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो अफेक्ट हो जाएगी। अफेक्ट इस तरह हो जाएगी जैसे अगर मैंने आपसे कहा है कि रिडंडेंट डेटा हमने हटा देना है, जो चीज़ 2 दफ़ा आ रही है उसको हटा दें। जैसे 2 दफ़ा की एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर डेटा है अगेन, तो मैं एक एज भी ले रही हूँ उनकी और साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ भी ले रही हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ और एज दोनों रखने का तो कोई फायदा नहीं है। आप व्हाई नॉट यू जस्ट ड्रॉप द एज कॉलम और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ रख लें। हाँ, उसको बाद में आप एज में ट्रांसफॉर्म जरूर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से क्या होगा कि आप ईयर आराम से निकाल सकते हैं। तो ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है। जब आप इस तरह की रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स को देते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो जाती है। जितनी अच्छी आप प्री प्रोसेसिंग करेंगे उतना अच्छा आपको आपका डेटा माइनिंग एल्गोरिदम जो है वो परफॉर्म करके दिखाएगा। इसमें अगेन डेटा रिडक्शन आ जाती है, दैट मीन्स फाइंडिंग यूजफुल फीचर्स। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन भी इसको कहते हैं। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्यों कहते हैं, अच्छा ये मैं जरा आपको बताती हूँ। जो हम ज्यादातर डेटा के साथ डील करेंगे ना, वो टैब्यूलेटेड डेटा है। ठीक है, मैं एक सेकंड ड्रॉ करके दिखाती हूँ। वो टैब्यूलेटेड डेटा होगा। टैब्यूलेटेड डेटा के बाद हमारे पास एक विल हैव नंबर ऑफ रोज एंड विल हैव नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर ये मेरे पास कॉलम्स हैं, these are all the columns, let's say, and these are all your rows. So on. ठीक है, ये जो आपके पास कॉलम्स हैं इनके अंदर आपके पास एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है ना, ये एज को रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉलम। ठीक है, ये वाला फॉर एग्जांपल लेट्स से लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन। इस तरह ये जो आपके कॉलम्स होंगे ना, ये दीज आर योर एट्रीब्यूट्स। इनको बहुत से नाम लिए जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। किताब में भी, और अगर आप नेट पे कुछ चीज़ देखते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं, या कोई एक किताब से दूसरी किताब पढ़ते हैं, या मेरे लेक्चर्स में सुनते हैं, तो you will be learning, you will be using different words for these things. You can use a word attribute, you can use a word variable, you can use a word feature, you can use a word dimension. ठीक है, तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो सारे होते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर, एक सेकंड, ये फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर 1 की इंफॉर्मेशन है। ये कस्टमर C1 से मैं इसको,
तो इसके बाद जो होगी ना इन्फॉर्मेशन वो कस्टमर 2 की होगी, फिर इसके बाद जो होगी वो फॉर एग्जांपल कस्टमर 3 की होगी। सो ये आपके सारे इनको हम टपल्स भी कहते हैं, इनको हम यू नो देयर आर फ्यू अदर नेम्स फॉर इट, लेकिन ये जो आपके पास ये डायमेंशंस है ना, इनको आप एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, डायमेंशंस भी कहते हैं, फीचर्स भी कहते हैं, वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट, ट्राई गेटिंग यूज्ड टू ऑफ इट। चलिए जी, लेट्स गो फर्दर। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। हाँ, चूजिंग फंक्शन फॉर डेटा माइनिंग, आपने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है या कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल करना है, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बात होनी चाहिए कि वो तब आपको पता चलेगी जब आप सारे एल्गोरिदम्स देख चुके होंगे और फिर आप कहेंगे कि हाँ मैं ये एल्गोरिदम लगाऊंगा तो मुझे इस तरह का पैटर्न पैटर्न्स मिलेंगे, या ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, ये मैं समझाती हूँ व्हाट क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन करूंगा तो मुझे ये चीज मेरी प्रोडिक्ट हो जाएगी। अब क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे माइनिंग एल्गोरिदम्स हैं। अब कौन सा माइनिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल करना है, बिकॉज कोई माइनिंग एल्गोरिदम होगा जो ज्यादा डेटा सेट के लिए बेहतर होगा। जी, जी प्लीज कीप योर माइक म्यूट्स। अच्छा जी, लेट्स गो फर्दर। ठीक है, then what we have to do is we have to evaluate those patterns। पैटर्न्स को evaluate आप इस तरह कर सकते हैं कि आप redundant पैटर्न्स को रिमूव कर दें, आप उन पैटर्न्स को इस तरह ट्रांसफॉर्म करें कि जिसको आपने ये इंफॉर्मेशन देनी है उसको बेहतर समझ आए, या आप उन पैटर्न्स को विजुलाइज करें। ये एक और बहुत बड़ा टॉपिक है इन डेटा माइनिंग, विच इज डेटा विजुलाइजेशन। डेटा जब या पैटर्न्स या डेटा जब आपके पास ऐसे रॉ फॉर्म में होता है ना, तो देखने से समझ नहीं आती है। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ विजुअलाइजेशन, और सबसे बेहतर विजुअलाइजेशन जो होती है ना वो विजुअल फॉर्म होती है। व्हेनेवर यू सी समथिंग इन द विजुअल फॉर्म, वो सबसे बेहतर तरीका होता है। तो विजुअल फॉर्म हमें कौन सी चीज प्रोवाइड करती है सबसे बेहतर, वो है ग्राफ्स। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स एंड जो कि आपको बेहतर डेटा विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करती हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन इज गोइंग टू बी अनदर बिग टॉपिक फॉर आवर कोर्स। And then of course you've got the patterns, you've visualized them, then you can use it। अब उसको अपने यूज में लाना है या नहीं लाना वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी। सो देयर आर डिफरेंट टास्क। जो 3 मेन चीजें हम पढ़ेंगे ना, 3 में, एक तो डेटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ेंगे जो शुरू में, और फिर एंड में पढ़ेंगे डेटा विजुअलाइजेशन। जो बीच में डेटा माइनिंग के 3 टॉपिक्स हैं ना, वो 3 मेजर टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन, रूल माइनिंग। Anybody among you who can give me an idea what does classification mean? किसी को कोई आइडिया हो? मैम इसमें ये होता है ना कि हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, लाइक यस क्लास और नो क्लास, और लाइक दिस इज डूइंग और नॉट डूइंग, जिसमें जैसे कि डिफरेंट हमारे एल्गोरिथम्स भी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर हम इस तरह करते हैं। हाँ जी, मशीन लर्निंग, मैंने आपको ये बताया कि मशीन लर्निंग के और इसके बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो ओवरलैपिंग है। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन अगेन एज इट द नेम इंडिकेट्स कि हम इसमें क्लास को प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है बहुत सारे पेशेंट्स का, और उनके डिफरेंट जो टेस्ट हुए हैं उन, मतलब कि फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट में कोई खास एक किसी चीज की वैल्यू है, वो एक एट्रीब्यूट बन जाएगा। लेट्स से, मतलब आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन मेडिकल टर्म्स, सो लेट्स से कि आपके पास आ जाए कि ब्लड टाइप एक एट्रीब्यूट बन गया आपका, या एक डायमेंशन बन गई। फिर आपके पास बन गया लेट्स से कि एचबी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। ये सारे एट्रीब्यूट्स, इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स के आपने टेस्ट लिए होंगे, और उस टेस्ट के बाद आपने डॉक्टर ने उसको ये बताया होगा कि दिस इज द डिजीज दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम। फॉर एग्जांपल एनी वन डिजीज, लेट्स से टीबी। ठीक है, तो टीबी आइदर यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव, या आपको है या आपको नहीं है। ठीक है, तो ये प्रीवियसली जो ऑलरेडी डिड्यूस्ड डेटा होगा, जो डॉक्टर्स ने डिड्यूस किया होगा, अगर उस डेटा को हम यूज करके जो भी नया पेशेंट आए, हम उसको, डॉक्टर इसके बजाय कि डॉक्टर उसके बारे में बहुत सोचे, हम एक ऑटोमेटेड तरीका निकालें
कि हम कहें कि जो अब ये नया पेशेंट आया उसकी टेस्ट्स की ये वैल्यूज हैं, वेदर ही हैज टीबी और नॉट। इस तरह के कामों को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जहां हम अपनी डिफरेंट रूल्स जनरेट करते हैं कि इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस देन द क्लास इज इक्वल्स टू दिस। इस तरह के रूल्स आपके इफ एंड एल्स की फॉर्म में जनरेट होते हैं या ट्री की फॉर्म में जनरेट होते हैं, जो हम डिटेल में देखेंगे। देन कम्स क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग अगेन, क्लस्टरिंग जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, हम अपनी डेटा को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जो डेटा सेट्स, जैसे कस्टमर्स का डेटा है, तो जो कस्टमर्स की ट्रांजैक्शंस एक दूसरे से बहुत मिलती होंगी ना, वो एक क्लस्टर में चले जाएंगे। उसका फायदा क्या होता है? उसकी एक एप्लीकेशन ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का डेटा है मेरे पास, ठीक है, और मैंने अपने कस्टमर्स को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया। अब जो एक पर्टिकुलर क्लस्टर है उसमें मैंने देखा है कि एक खास किस्म की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से जितनी चीज़ें गेमिंग से रिलेटेड है ना, उस तरह की चीज़ें जो है ना, वो क्लस्टर के कस्टमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि गेमिंग की कोई नया प्रोडक्ट अगर आया है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप सारे कस्टमर्स को एडवर्टाइज करें, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो इंस्टेड कि आप सारों को करें, आप क्या करेंगे कि आप उस खास एक क्लस्टर के लोगों को सिर्फ एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजिंग कहलाती है, स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग, कि आप सिर्फ स्पेसिफिकली उन लोगों को भेज रहे हैं जो आपका सिस्टम आपको कह रहा है कि यही लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। और वो मोस्टली क्या होगा, वो यंग लॉट होगी, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट क्लस्टरिंग इज। और बाद में आप खुद से उसको क्लास बेशक को बना लें, आपको सिस्टम, आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्लस्टर्स में डिवाइड करके देगा। आप कहेंगे अच्छा ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर जो है इसमें गेमिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये कस्टमर्स इस्तेमाल करें, तो मैं जो नया प्रोडक्ट आएगा उसका एसएमएस जो है ना, या एडवर्टाइजिंग एसएमएस जो है ना, वो मैं सिर्फ इन कस्टमर्स को भेजूंगा। एसोसिएशन रूल डिस्कवरी। एसोसिएशन रूल डिस्कवरी यूजुअली मार्केट बास्केट एनालिसिस कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा बिजनेस इंटेलिजेंस में या जहाँ मार्केटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ इस्तेमाल होता है। ये जितनी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं स्टोर में, उन ट्रांजैक्शंस को इस्तेमाल करके आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, अगेन फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग, फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ये सारी बातें जो है ना, ये सारी जितनी कंपनीज है ना, ये एसोसिएशन रूल माइनिंग इस्तेमाल करती हैं। जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो पहले उसके बारे में जो रिसर्च होती है उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि क्या अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो क्या ये कितना हमें बेनिफिट दे सकता है। तो these kinds of things are dealt in association rule mining. We have different algorithms with it. हम पहले start करेंगे association rule mining से, then we'll move on to classification and then we'll move on to clustering. ठीक है, मैं अभी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रही, ये आप लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगी या आप इस तरह की चीज़ें जो है खुद से पढ़ लीजिएगा। एसोसिएशन डिस्कवरिंग द पर्सनल लोन्स आर रीपेड 80% कॉन्फिडेंस विद द पर्सन्स ओन्स हिज होम। एक ये रूल है, तो जिनका अपना, द पीपल हु ओन देयर ओन हाउस आर मोर लाइकली टू पे द लोन बैक, ठीक है। तो ये फ्रॉड डिटेक्शन में या लोन अप्रूवल्स में इस तरह की चीज़ें ये भी यूज़ हो सकती हैं। अच्छा, एक क्लासिक एग्जांपल है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो यूजुअली अगर हम खुद से सोचें तो हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आ सकती। व्हाट दे डिड वाज दे applied association rule mining algorithms on a huge database, huge store database, जो transactions का उनका database था, and they found out that people who are buying diapers tend to buy beer. अगर एज अ ह्यूमन ब्रेन में ये बात सोचूं तो ये मुझे बहुत अनलाइकली बात लग रही है, बिकॉज मैं अगर किसी बारे में सोचूं तो मैं ये सोचूं कि जो डाइपर्स हैं, जो बंदा डाइपर्स खरीद रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली कोई पाउडर मिल्क शायद ले साथ। और आई हैव अ क्लास गोइंग ऑन बेटे, गिव मी 10 minutes. Okay, so this is very unlikely the people who buy
ए आपकी अपनी इंटेलिजेंस है, ये पैटर्न हमें पता चल गया था, पीपल हु आर बाइंग डाइपर्स टेंड टू बाय बियर, ये हमें रूल एक पता चल गया। लेकिन आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? बहुत से तरीके हैं। आप क्या, एक तो ये काम कर सकते हैं कि आप स्टोर में डाइपर्स और बियर्स नेक्स्ट एक दूसरे के नेक्स्ट रख लें, ताकि जो बंदा डाइपर पिक करे वहीं से वो अपनी बियर पिक कर ले। गॉट इट? एक और बिजनेस फॉर्मूला ये हो सकता है कि आप एक एंड पे डाइपर रखें और स्टोर के दूसरे एंड पे या आयल के दूसरे एंड पे बियर रखें। वो लोग जैसे क्यों करते हैं, जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली खरीदी जाती हैं ना, वो आप अगर दोनों को दो एंड्स पे रख लें तो व्हाट विल हैपन दैट ऑन द वे देयर आर चांसेस कि द कस्टमर विल यू नो गेट वन और टू मोर थिंग्स। अगर साथ साथ ये दोनों चीज़ें पड़ी होंगी, उसने एक उठाया दूसरा उठाया और वो स्ट्रेट चला गया उस पे काउंटर पे। लेकिन अगर आप दो एंड्स पे रख रहे हैं तो चांसेस आर कि ऑन द वे टू द अदर प्रोडक्ट उसको बहुत सी और चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो उनमें से कोई पिक कर सकता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इन रूल्स को यूज़ कैसे करें। ठीक है? सो देयर आर many applications that are there about these algorithms that we're talking about. मार्केट एनालिसिस है जिसमें टारगेट मार्केटिंग आ जाती है। ये मैं सॉरी वर्ड इस्तेमाल करना चाह रही थी, दिस वाज टारगेट मार्केटिंग। दैट मीन्स कि मुझे अगर पता चल गया है कि ये ग्रुप ऑफ दोज पीपल है जो गेमिंग के प्रोडक्ट्स खरीदता है, तो मैं टारगेट मार्केटिंग करूंगी। ठीक है? कॉर्पोरेट एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, फोरकास्टिंग है, कस्टमर रिटेंशन है, इम्प्रूव्ड अंडरराइटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें इसके एप्लीकेशन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी? ये डेटा ये आपकी किताब के इंट्रोडक्शन में भी सारा कुछ मौजूद है और आप क्या कर सकते हैं, इसको एक दफ़ा डिटेल में भी देख सकते हैं। और मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगी, बल्कि आप ऐसा करिएगा कि नेक्स्ट टाइम डेटा माइनिंग की 10 एप्लीकेशंस अपने दिमाग में रख के आइएगा। ठीक है? सर्च करिएगा या खुद से सोचिएगा कि डेटा माइनिंग की क्या 10 एप्लीकेशंस हो सकती हैं। अच्छा जी, I've told you about what clustering is. I've told you what classification is. I won't go into this text. ये text वही है जो किताब में लिखा हुआ है। So और हम इनको डिटेल में देखेंगे भी, so I need not to go through it. Let's quickly go through this course outline ताकि हम next class से data pre-processing हम करना शुरू कर देंगे next class से। अच्छा जी, this is the course outline. First of all, we'll be discussing about data pre-processing. Few lectures will be spent on data pre-processing, जिनमें से हम data cleaning के बारे में बात करेंगे, data integration and transformation के बारे में बात करेंगे, data reductions के बारे में बात करेंगे. There are already planned algorithms that are there for these data pre-processings, right? इसके बाद the other topic is, जो मैंने 3 topics आपको बताए हम उनसे शुरू कर देंगे। association rule mining है जिसमें ये different types of algorithms आ रहे हैं। a priori है, Pitzer set algorithm है, ये algorithms के नाम है इसलिए इनसे परेशान नहीं होना। dynamic item set count algorithm है, FP tree है, माफिया एक algorithm है, और of course उसके बारे में हम exercises और case studies साथ साथ करते जाएंगे। Then comes clustering. Clustering में हम similarity measures देखेंगे, इसके कौन कौन से similarity measures इस्तेमाल किए जा सकते हैं to find out the similarity between two tuples. Tuples मैं अगर customer data की बात कर रही हूँ तो मैं 2 customers के दरमियान कैसे similarity find out की जा सकती है। इनके algorithms हैं जिनके ये कुछ नाम है, K-mean है, Midwood है, DBScan, Optics, Cure, ROC, और इनको validate कैसे किया जा सकता है। Then comes classification. Classification again we have these different algorithms that are decision trees, naive Bayesian network, support vector machine, artificial neural network, KNN, that stands for K nearest neighbors. And we're also going to study genetic algorithm, which is one of the advanced topics, but still I'm going to cover it in classification. उसके अलावा in the end we'll talk how text mining is done, web mining is done, और आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम क्या चीज़ होती है, एंड सम डेटा विजुअलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है? सो दीज आर सम डिफरेंट टॉपिक्स जो इसके बीच में हम कवर करेंगे। सो दिस इज व्हाट द कोर्स इज ऑल अबाउट. We'll start with data pre-processing in the next class and we'll start with data cleaning. I want you to get the book. PDF मैं इसकी अपलोड कर दूंगी,
हार्ड कॉपी लेंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि उससे रीडिंग बेहतर होती है और समझ भी बेहतर आती है, लेकिन यू आर ग्रोन अप इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गुड फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट गुड फॉर यू। हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और कोशिश मैं ये करूँगी कि मैं आपको कुछ प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज जो हैं उनसे फेमिलियर कराऊं और डेटा जो है ना वो लोड शोड करके हम कुछ प्री प्रोसेसिंग के साथ प्ले कर सकें ऑन कोलैब और इसी तरह बाकी सारे एल्गोरिथम्स के साथ। अगेन लैब जो है वो डेटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है कंपलसरी, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी उस लैब में बैठना चाहते हैं टू लर्न समथिंग सो दे कैन सिट, उनसे पता कर लें कौन सी टाइमिंग्स हैं। अभी हमें किसी ने चैट पे बताया भी है कि क्या टाइमिंग्स है। थर्सडे, हाँ जी, थर्सडे को 11 से 1:30 बजे है, तो आप बैठ सकते हैं। मैं एक दफ़ा मालूम कर लूँगी उनसे इजाज़त ले लूँगी कि आई होप कि ही डजंट हैव अ प्रॉब्लम इफ समबडी एल्स, CS डिपार्टमेंट के भी कुछ बच्चे अगर वहाँ बैठ जाएं। वो नॉन क्रेडिट होगी, सिर्फ आप अपनी सीखने के लिए अगर बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं। ओके जी, आपका सेक्शन है। ओके जी, आई एम अबाउट टू टेक अटेंडेंस, so what you do is please you can say out loud present and also you have to raise your hand ताकि मुझे नजर आ जाए कि आप लोग। मैम ये हमारा कोर्स ऑन कैंपस ही क्यों नहीं कर देते ये वाला, या हमारी सारी ये जितने भी जी ये कोर्सेज? मेरा डिसीजन नहीं है ये आप COD और डीन वगैरह से आप डिस्कस कर सकते हैं, वो जैसे हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे ये वैसे ही हो जाएगा। और मे बी क्योंकि चेंज इतनी एकदम से आया है, इनिशियली व्हेन सेमेस्टर वाज प्लान्ड इट वाज नॉट प्लान्ड दिस वे, तो एकदम से क्योंकि ओवर द वीकेंड ये चेंज आया, तो मे बी दे आर वर्किंग इट आउट। मे बी 1-2 हफ्ते लगे और ये वर्कआउट करके आपको सारे कोर्सेज को ही ऑनलाइन कर दें। अच्छा जी, सॉरी ऑन कैंपस कर दें। अच्छा जी, आई एम अबाउट टू टेक अटेंडेंस। अब्दुल्ला मनसब, Abdullah Mansab, raise your hand also bete and say, अच्छा ठीक है, Okay. you're saying something but you're not raising your hand. Anyways, you're present. Abdullah Numan, आवाज आ रही है बेटे मेरी? मैम वो क्लास में आई थिंक माइक इशू है। जी बेटे, if your mic has any issue you can raise the hand. You can raise the hand if you have mic issues, you can raise the hand. जी, और जो वर्बली प्रेजेंट कॉल कर रहे हैं वो प्लीज हैंड भी रेज कर दें तो अच्छी बात है। कामरान, एक्चुअली मैं आपकी अटेंडेंस जो है ना वो दूसरी स्क्रीन से ले रही हूँ और लेक्चर दूसरी स्क्रीन से ले रही हूँ। नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही करूंगी कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो जाए। अबू बकर बिन जाहिद, प्रेजेंट मैम। ओके जी। एहसन हसन, मोहम्मद कामरान, आप ये मैं अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है, सो व्हेन M comes so you can be vigilant कि मेरा नाम कॉल होने लगा। आयशा जीनत, प्रेजेंट। अली अफजल, Present, ma'am. अली अशर, Ma'am, Ali Ashar present. अच्छा जी। अंस खुर्शीद, अरहम नवाज, अरसलान, Present. Line is present. Asadullah, okay. Asadullah Zahid, Ayan Ahmed, I can see you Ayan, but you're not raising hand or
मैं मेरे साथ ही खड़ा हूँ। हाँ जी, इनके माइक को भी मसला है कोई? नहीं, ये मेरी Ayan, raise your hand. Hafiz Mohsin. Hafiz Mohsin. Hafiz Mubashir. Hafiz Mubashir. Hafsa Azam. ओके जी, हसनैन परवेज। हसनैन परवेज। हाँ जी, अयान अब आप कर रहे हैं अपना हाथ रेज। इर्तजा मलिक। मैम उसमें डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। ओके, इर्तजा मलिक। इज इर्तजा मलिक हियर? मारिया काजी। मारिया काजी। ओके जी, मोहसिन फारूक। मोहसिन फारूक। मुबशिर इरशाद। मुबशिर इरशाद। मोहम्मद फहद। Okay, you're present. Muhammad Abdullah with 095. Present, ma'am. Okay. Muhammad Abdullah with 042. Muhammad Ahmed. मैम मेरा मोबाइल का वो इशू हो गया है। Who is this talking? प्रेजेंट मैम। Muhammad Ahmed. हो गया प्रेजेंट मैम। बेटे अयान के माइक से कौन बोल रहा है? मैं अयान के माइक से नहीं बोल रहा था, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा अच्छा। मोहम्मद अली। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद असफर। मोहम्मद असफर वन प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हुजैफा। मोहम्मद हुजैफा। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद कामरान। मोहम्मद मुज्तबा। मैम मुस्तफा सिद्दीकी के मोहम्मद मुस्तफा। मैम मोहम्मद मुतैयब होगा। जी मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी। Yes, you're present. यस Just मैम मुस्तफा मोहम्मद। सिद्दीकी प्रेजेंट। अच्छा जी, मोहम्मद मुतैयब, सॉरी मोहम्मद प्रेजेंट मैम। सॉरी मैम मुस्तफा सिद्दीकी प्रेजेंट। दोनों Okay. प्रेजेंट है जी, ठीक है, मुझे पता चला। मोहम्मद मुतैयब मैम। मोहम्मद सैफ जी प्रेजेंट है। मोहम्मद सैफ। प्रेजेंट मैम। ओके जी, मोहम्मद शाहिद। प्रेजेंट। ठीक है जी। नवीद इकबाल। नवीद इकबाल। उसामा तारिक। उसामा तारिक। प्रेजेंट मैम। ठीक है जी। रोहान अफजल। रोहान अफजल। ओके, ये प्रेजेंट। सलमान रजा। सलमान रजा। शाजिब शहजाद। प्रेजेंट मैम। सैयद अब्दुल्ला मोइज। Present, ma'am. Ma'am Abdul Mois. ओके सॉरी। सैयद ईसा रजा। ईसा रजा। सैयद इकबाल हुसैन। प्रेजेंट मैम। सैयद इकबाल। सैयद और मोहम्मद। प्रेजेंट मैम। उस्मान अहमद। प्रेजेंट मैम। उस्मान बशारत। उस्मान बशारत। उसर अहमद। आई होप आई एम यस प्रेजेंट प्रोनाउंसिंग। मैम। उसार अहमद मैम।
Present, ma'am. Waleed Mahmood. Waleed Mahmood. Ma'am, Usar present. जी जी, वो सारा आपका लिख दिया. वलीद महमूद. वर्दा एहसन. ओके वर्दा, you're present. जाफिर मोहम्मद. Present, ma'am. ओके जी. जैन बिलाल. जैन बिलाल. जुबैर मोहम्मद. Present. अच्छा जी, आई होप कि सबका नाम आ गया है जो बैठे हुए क्लास में. दैट मीन्स यू आर ऑल एनरोल्ड. सो जी हाँ, अली अफजल, यू नीड टू से समथिंग. अच्छा जी. Muhammad Kamran, you're present. Muhammad Abdullah Noman, you're also present. Challenge, that's it. That's it for today's class. I'll see you on Monday, inshallah. And we'll start formally with our first topic. बेटे रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाती है. थोड़ी देर में हो जाएगी अपलोड. जैसे ही मैं एंड करूंगी ना, वही लिंक पर आ जाएगी आपके पास. जहां से लिंक से ज्वाइन किया ना, उधर ही आ जाएगी. LMS पर देख लें, सारे लिंक्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं. अभी किसी ने जी रेज किया था हैंड. somebody wants to ask something. Okay जी, thank you for this session. I'll see you on Monday, inshallah, and we'll start with the first formal topic. हाँ जी, any question before I end the class? Okay जी, I assume there is none. Okay, I have one in chat. Okay, you also have a good day. Allah Hafiz. Okay जी, Allah Hafiz. That's it. I'm ending the lecture. See you on Monday.